Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease, and today we are going to start unit 5 of macroeconomics balance of payment. Okay, इसके बाद जो है आपकी एक ही यूनिट बचेगी, यूनिट 3. ओके, दिस यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है आपका 6 मार्क का टोटल है, जिसमें एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. ओके, so first of all, the meaning of foreign exchange rate is what? That is, all the countries have their own currencies which are readily acceptable within their respective territories. We all know कि अगर हम इंडिया से हैं तो हमारी करेंसी रुपीस है, लेकिन हम जब बाहर जाएंगे ट्रैवल करेंगे इट वोंट वर्क. वी हैव टू गेट दैट द करेंसी ऑफ दैट कंट्री. ओके, तो क्या होता है उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, एंड द रेट एट विच the currencies of two countries can be exchanged known as the foreign exchange rate. Okay, in simple words. So for example, Indian rupee, that is rupees in India, US dollar है in America, and pound in England, etc. Okay, so however, currencies of one country is generally not accepted in another country. In case of an international payment, currency of one country has to be converted into the currency of another country. So only this thing we are going to learn in this chapter, foreign exchange rate. और ये बेसिकली पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है आपका. होपफुली आप जल्दी से इसको समझ जाएंगे, जल्दी से मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी, देन वी कैन मूव टू द अदर चैप्टर्स आल्सो. ओके, सो country has to be converted into the currency of another country because every country wants the payment in its own currency. तो इसका रीजन क्या है, हमें क्यों चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रेट? बिकॉज every country wants the payment in its own currency. Okay, so foreign exchange का मीनिंग क्या है? Foreign exchange refers to all the currencies other than the domestic currency of a given country. Domestic currency मतलब क्या हुआ? जहाँ कि मैं रेजिडेंट हूँ, जहाँ मैं रह रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन इंडिया, सो इंडियन करेंसी मेरी क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक करेंसी. और यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हम लेंगे वो इंडियन करेंसी को ही रिलेटेड लेंगे, कंसिडर करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज डोमेस्टिक करेंसी इज इंडियन रुपी एंड ऑल अदर करेंसीज, यानी कि जो मेरी कंट्री का करेंसी है वो रुपी हो गया, और इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज आती हैं हमारी, फॉर एग्जाम्पल हियर यूएस डॉलर, ब्रिटिश पौंड, कुवैती दिनार एक्सेट्रा आर फॉरेन एक्सचेंज. ओके, so for example, if an American firm exports goods to India, okay, it would like to receive the payment of in dollars. As a result, Indian importers will have to convert Indian rupee into American dollars to make the payment. Okay, जब export हुआ है तो हमको payment चाहिए किस में है? American dollars में ही चाहिए, because वहां पे Indian currency का कोई value नहीं है. Okay, तो हमें इसलिए उनकी करेंसी में ही उनको पेमेंट करना पड़ेगा. फॉर दैट वी नीड द फॉरेन एक्सचेंज. It creates a problem of converting one currency into another and fixing the rate at which the two currencies are to be exchanged. In fact, it is the problem of determination of foreign exchange rate. Okay. Now, first of all, आपको क्या है? मीनिंग पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज का, देन फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग पता होना चाहिए, राइट? So it refers to the rate at which one currency exchange for the other. Okay, it represents the price of one currency in terms of another currency. आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ये. फॉर एग्जाम्पल, इफ डॉलर वन कैन बी एक्सचेंज फॉर रुपीज 81, यानी कि एक डॉलर के लिए मुझे कितने देने पड़ रहे हैं इंडियन करेंसी? रुपीज 81. देन द वैल्यू ऑफ रुपीज 1 कितनी हो जाएगी? तो 1 इज इक्वल टू 1/81, सो इट विल बी 0.0123. हमें पता ही है कि यूएस डॉलर जो है आपका ज्यादा एक्सपेंसिव है और इंडियन करेंसी कम उसकी वैल्यू होती है. ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स of one currency required to exchange with one unit of another. If exchange rate of pounds and rupees is pound 1 equals to rupees 105, or pound 1 is equals to 105, then it means that 105 rupees are needed to have 1 pound. यानी कि अगर हमें पाउंड चाहिए है, एक पाउंड के लिए मुझे कितना देना पड़ रहा है? 105 रुपीज इंडियन करेंसी मुझे देना पड़ रहा है. ओके, and most important thing, the exchange rate can fluctuate from year to year or even day to day. यानी कि इसका exchange rate fluctuations होते रहते हैं. In a country there are many foreign exchange rates, as there are foreign currencies. Like many other prices, exchange rate is determined by forces of demand and supply. तो दो चीजें आपको रखनी है, that is foreign exchange rate, foreign exchange meaning, then the fluctuations are from year to year or even day to day, and this, that is exchange rate, is determined by forces of demand and supply. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम डिमांड एंड सप्लाई पढ़ रहे हैं, where the both demand and supply meet at that point, जिस प्राइस पे वो मीट करते हैं, जहां पे इक्विलिब्रियम होता है, वहीं पे हम कहते हैं उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट. उस रेट को हम कुछ कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. ओके, एक्सचेंज रेट. नाउ this topic I'm going to just do it on the whiteboard. Currency depreciation versus currency appreciation. मैं आपको इसके notes देती हूँ, बुक में भी लिखा है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, but before that I'm going to give you the notes.
जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। फॉरेन एक्सचेंज का हमने मीनिंग पढ़ लिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग पढ़ लिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स हियर इज डेप्रिसिएशन। अगर पूछा जाता है एग्जाम में आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ओके इसको समझना है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा, इसका मतलब क्या, डोमेस्टिक करेंसी की यहाँ पे जितनी बार भी हम बात करेंगे, इट मीन्स यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट और कंसिडरिंग ओनली इंडियन रुपी, ओके इंडियन करेंसी दैट इज रुपी, ओके ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इसकी क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, वैल्यू डिक्रीजेस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मैंने डीसी शॉर्ट में लिख दिया, ओके। नाउ what are the things you have to mention here or to keep in mind? First of all, मैं पॉइंट्स में दे रही हूँ। इट मीन्स, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे प्रैक्टिकल में, मतलब एक 1 मार्क का भी हो सकता है, उसको पता चाहिए। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इंक्रीज, इट मीन्स इंक्रीज इन, ओके इसका तो वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी का आपका कम हो रहा है, तो इट मीन्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। या फॉरेन करेंसी आपकी हो सकती है डॉलर भी हो सकती है, पाउंड भी हो सकती है, दिनार भी हो सकती है, ओके फॉरेन करेंसी। या इसका मतलब हो सकता है डिक्रीज इन प्राइस, का मतलब यहाँ पे वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ओके। देन दिस नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं, फॉरेन करेंसी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब इसकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो फॉरेन करेंसी, ज्यादातर हम लोग इसको डॉलर में ही लेते हैं, ओके डॉलर क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंसिव हो जाएगा। मैं समझाती साथ में चल रही हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आफ्टरवर्ड्स, ओके। एक्सपेंसिव, एग्जाम्पल आप कह सकते हैं डॉलर इंक्रीजेज फ्रॉम 70 to 75 कर सकते हैं यहाँ पे हम, ओके फॉर एग्जाम्पल। देन एक और पॉइंट आप कर सकते हैं, ये होता क्यों है, इट इज कॉज्ड, या तो उसकी इंक्रीज इन डिमांड हो गई। इंक्रीज इन डिमांड किसकी हो गई है, दैट इज आपकी डिमांड बढ़ गई है फॉरेन करेंसी की, फॉरेन करेंसी आपको ज्यादा चाहिए, इंक्रीज इन डिमांड। या हम सप्लाई उतनी कर नहीं पा रहे हैं, डिक्रीज इन, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो है उतना है नहीं जितनी की उसकी डिमांड हो रही, तो इस वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी की क्या होगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी वैल्यू, ओके। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आराम से इसको कर जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाह रही हूँ, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का एग्जाम्पल, ओके। तो एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन रुपी यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ, ठीक है। पहले क्या था आपका, मान लिए $1 80 रुपीज पे एक्सचेंज हो जाता था, ठीक है ₹80 हम देके $1 ले लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, $1 के लिए मुझे कितने खर्च करने पड़ रहे हैं, 85। इसका मतलब इसका तो क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। लेकिन हमेशा देखिएगा जब भी इंडियन रुपी आपका जो है देना पड़ रहा है ज्यादा, तो इसका मतलब है डेप्रिशिएट हो रही है आपकी डोमेस्टिक करेंसी। इसका उल्टा एरो का मतलब समझिएगा, ठीक है कभी भी इसको, इसी यही कॉन्सेप्ट मेन है। हमें पहले क्या देना पड़ता, $1 के लिए हमें ₹80 देने पड़ते, अब इसका मतलब क्या है, डॉलर महंगा हो गया है, ₹1 के बदले में हमें कितने देने पड़ रहे हैं, ₹85 देने पड़ रहे हैं, राइट। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसमें, द वैल्यू ऑफ रुपी हैज डेप्रिशिएटेड। समझ में आ गई बात ना, कि हमें ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं डोमेस्टिक करेंसी के, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन हो गया। इट नाउ
यही स्टेटमेंट्स आपको लिखने होंगे। नाउ टेक्स more rupees to buy the same US dollar, okay? Then making US goods more expensive for Indians. ओके ना, इसका इफेक्ट क्या होगा ये भी मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि आप एक ही पेज पे कर लें। ओके, तो इसका ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यही आप डिफरेंस बिटवीन भी कर सकते हैं और एग्जांपल से आप इसको समझा भी सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा इसमें, जब आपकी वैल्यू आपकी इंडियन करेंसी की यानी कि रुपीस की जो है आपकी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट्स ज्यादा करने लगेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर जाएगा, नेशनल इनकम भी आपकी इंक्रीज कर जाएगी और इंपोर्ट्स क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप कह सकते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है, वीकन्स होती है, इट बाइज लेस फॉरेन करेंसी। So this is the whole thing about depreciation of domestic currency. Now we are going to start the next here, appreciation. Okay, ये बहुत important topic है, please don't forget that. Okay, now appreciation of domestic currency, हम domestic currency को ही consider करेंगे। Okay, it means अब इसका ये क्या points होंगे मैं लिखूंगी ये, decrease in price of फॉरेन करेंसी। अब यहाँ पे उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, हर चीज ऑपोजिट हो जाएगी, तो अगर आप एक चीज याद रखेंगे दूसरा अपने आप करते चले जाएंगे। और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, राइट। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, फॉरेन करेंसी अब उसमें क्या थी, बढ़ गया था, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर, उसमें एक्सपेंसिव था क्योंकि यहाँ पे हमारे कंट्री की वैल्यू करेंसी की बढ़ गई है, राइट। एग्जाम्पल, डॉलर का क्या हो जाएगा अब, डिक्रीजेस फ्रॉम 75 टू 73 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें 70 टू 75 था, इसमें डिक्रीज कर गया ना। थर्ड पॉइंट आप क्या कर सकते हैं इसमें, इट इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, ना एग्जाम्पल इसमें रिजल्ट इफेक्ट भी बता दूं मैं यहीं पे। इफेक्ट क्या होगा, उसमें आपका इफेक्ट क्या था कि आपका इंडियन रुपी का एप्रिशिएट हो रहा है यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो बिफोर हम $1 कितने में ले रहे थे, 80 में ले रहे थे सपोज, और अब कितना हम ले रहे हैं कि वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है, तो हम फीस तो लिखना भूल गए मैं, इंडियन करेंसी अब इतना पे कर रहे हैं 75 खाली $1 के लिए, तो अप्रिशिएट हो गया। देखो यूं तो ये डाउन हो रहा है लेकिन डाउन का मतलब है यहाँ पे एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब रुपीस का एप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, नाउ रिजल्ट इसमें क्या आ जाएगा,
The value of Indian currency. Yeah, rupees. Okay, has appreciated because we are now paying less. Okay, appreciated. Okay, as now takes fewer rupees to buy 1 US डॉलर। ओके, और इसका मैं इफेक्ट को यहाँ पे मैंने लिखा था, लेकिन मैंने ये रिजल्ट लिख दिया था, एग्जाम्पल लिख दिया था। ओके, तो मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ। एक्सचेंज, और ये आपका पहले एग्जाम्पल है। ओके, फोर्थ पे एग्जाम्पल कर लिया, और फिफ्थ पे मैंने लिख दिया इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या होगा? अब आप, जब आपके जो है क्या हो गया है, बढ़ गया है करेंसी का वैल्यू हमारी इंडियन करेंसी का, तो हम इम्पोर्ट्स ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट्स हम कम करेंगे, लोग कम खरीदेंगे हमसे क्योंकि हमारी यहाँ वैल्यू बढ़ गई है, और नेशनल इनकम भी कम हो जाएगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। यही आपका सब बुक में दिया हुआ है। आई एम जस्ट sharing it on the screen from the screenshot from the book also. Okay, just go through that. Please take the screenshot. यही आपको बस समझना है, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसी पे ही क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। So you can take the screenshot of this also. Currency depreciation versus currency appreciation, जो मैंने लिखवाया है वही सेम चीज यहाँ पे है। You can easily go through that. You can take the screenshot जिनके पास ये बुक नहीं है। Now you can say depreciation of home currency leads to a rise in exports and fall in imports, which leads to increase in national income. यही मैंने आपको बताया था, बस ये आप चीज एक बार देख लीजिएगा। इसको कह सकते हैं डोमेस्टिक या होम करेंसी आपकी डिप्रिशिएट कर गई है, देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये भी हम कह सकते हैं। या डोमेस्टिक करेंसी हैज बिकम लेस वैल्यूएबल, फॉरेन करेंसी हैज बिकम मोर वैल्यूएबल। किसी भी तरह से आपको बोल सकते हैं ये कि इन केस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, इसको किसी भी तरह इन सब वर्ड्स में, इन सब सेंटेंसेस में, ये इन सब चीजों में पूछा जा सकता है ना। करेंसी अप्रिसिएशन, सेम थिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, वही सब चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी अप्रिसिएशन, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन वेरी वेल। ओके, इफेक्ट्स के साथ आप एग्जाम्पल यहाँ पे आप नेशनल इनकम भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम, कि इसमें क्या होगा, करेंसी डेप्रिसिएशन में आपका नेशनल इनकम इंक्रीज कर जाएगा, और करेंसी अप्रिसिएशन में देखिए डिक्रीज इन नेशनल इनकम। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस part, currency appreciation, depreciation, and meaning of foreign exchange and foreign exchange rate. In the next video, we are going to start the types of foreign exchange rate system. Hope you understand it very well. Keep learning, keep growing. Thank you so much.